Hello everyone, good morning. Welcome you back in the revision of the first topic, very first topic. Few of you do not have this first topic. What you can do is instead of wasting your time, you can continue the second topic revision, which is already here mentioned in this particular sheet itself. You can check that these are there already. You can start working on these question till that time we reach there. Okay, so I would suggest you that you can become bit more responsible, bit more mature to complete the revision what we are doing it right. So I'll just complete the first topic right now quickly without wasting so much of time, and let's continue to solve these questions. I had asked you to complete this question, and now I'm just going to help you in understanding these questions. Okay, the very first question, how can we do it? It's a easy one. uh, to make it easy, what I can do is 3 by 7 plus minus 8 by 21 I'll write together, minus 6 by 11 plus 5 by 22 I'll write together, so that I can easily bring 7 as 21 and 11 as 22. So 7 as 21 if I bring, I have to multiply by 3, right? Isn't it? Yeah, nahi. Yes, I have to multiply by 3. So 9 by 21 minus or plus minus 8 by 21 plus, here I have to multiply by 2, so minus 12 by 22 plus 5 by 22. So if I solve this, I get 1 by 21 plus 7 by 22, and of course that is minus 7 by 22, right? No, clear? And now to solve these one, which you could see here, I have to cross multiply and I'll get my answer. So 22 ones are 22 plus 7 into 21 minus 147 upon 21 into 22. However, whatever it is, you have to do, there is no option. So you can separately do it, there is no problem. 21 1 से करो या फिर 21 का टेबल मालूम है तो 21 के टेबल से करो. 21 2 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 21 2 ज़ा 42 plus 4 46, so 462. You can easily subtract, write the answer and get it done. ठीक है ना? तो I think 125 can be the answer. Minus 125 upon 462 can be the answer. ठीक है, ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. नेक्स्ट वन इज minus 4 by 5 into 3 by 7 into 15 by 16 into minus 14 by 9. तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि सारे मल्टीप्लिकेशन साइन है या कुछ एडिशन बीच में है. सारे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. इफ ऑल आर मल्टीप्लिकेशन देन वी कैन स्टार्ट जस्ट डिवाइडिंग बिफोर मल्टीप्लाइंग. ओके, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3 3. That's it. Then 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, sorry, and 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा. So what I'm left with is just 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. So what I'm left with is 1 upon 2, and with sign there are two negative signs, so it become positive. So this is the answer. So this become very easy, and we have done this before as well. Next question देखते हैं. Using distributive property, solve this one. Distributive property in sense, we have to maybe take common from these things. Okay, so let's try that. Let's try working on it. It's simple. 7 by 5 into minus 3 by 12 plus 7 by 5 into 5 by 12. So what do you think? This is one term and this is other term. We have 7 by 5 in common. If I take 7 by 5 common, so I get 7 by 5 into bracket minus 3 by 12 plus 5 by 12. Is that okay? So I have 7 by 5 into 2 by 12. So we have 7 by 5 into 1 by 6, which can be 7 by 30. And that's the final answer. Don't you think it's easy? It's a simple multiplication, isn't it? सिंपल, या 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ये ईजी है, ये आपको अभी ईजीली आ जाएगा, है ना. आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करो. 9 by 16 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम इट, है ना. 9 by 16 कैन बी टेकन कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट? 4 by 12 प्लस माइनस 3 by 9. ओके, साइन को कैरी करो, जैसे है वैसे ही कैरी करो.
गुड थिंग दैट आई कुड फाइंड कि कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आई हैव टू मेक इट सेम. तो सबसे पहले 4/12 इज रिटन एज 1/3 +-3/9. तो you can multiply by 3 to this one to get 9. So yes, so what do I get here? Even this can be 3 1s are 3 3s are 9 -1/3. So 9/16 is into 1/3 plus -1/3, which will be 0. Answer is 0. क्यों? 0 into anything is 0. So this is what we can see there, the answer. ठीक है, I have to go for the next one. Next is क्या है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ तो दिख रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं. 2/5 देख लो यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन देखो. 2/5 -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5. तो ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है इसको सॉल्व करने के. जैसे कि 3/7 कॉमन है, यू कैन टेक कॉमन, बट थोड़ी सी गलती आप लोग यहाँ पे कर सकते हो अननेसेसरी, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तीनों में कॉमन नहीं है. तो बेटर आई वुड से दैट यू कैन directly use your simple way of multiplication this one and multiplication of this one. So it will be -6/35, that would be -9/35, and this would be 1/14 as it is. Check कर लो, this is multiplied and these are the simple answers. I got it. So these are the same denominators. I can add them to 15, I think so. Yes, -15/35 plus 1/14, which can be easily simplified by 5, right? So 5 3s are 15 and 5 7s are 35 -1/14. So into 2 kiya, so you get your denominator same and you can easily get your answer, right? It's not a big deal, right? तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट वाला भी आप लोग खुद से कर सकते हो. वी हैव डन दैट ऑलरेडी. ओके, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. तो मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, तो 16/7. साइन ऑलवेज टू बी गिवन टू द न्यूमरेटर. दैट्स इट. तो मल्टीप्लाई करो, काम खत्म. दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ईजी था. व्हाट शुड बी, देखो ये जो है व्हाट शुड बी, ये आपको ठीक से समझ में आना चाहिए. What number should be added to this one? मतलब 7/12 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है? तो 4/15 आ जाएगा. तो बस 7/12 को इधर शिफ्ट करो एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट योर आंसर. What should be subtracted from this one? तो -3/5 से what should be subtracted to get -2? इसको मैं सॉल्व करता हूँ. तो मुझे लगता है x को इधर शिफ्ट करो तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2 को इधर शिफ्ट करते हैं. तो -3/5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x. देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हो गया, मेरा काम खत्म. 3/5 को मैं उधर शिफ्ट करता तो भी चलता, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वे से दिखाता हूँ. 3/5 को शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, -x रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियाँ होती है. -2 प्लस 3/5 चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे. -x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 3 -7/5. ठीक है, माइनस गेट कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 7/5. ये हो गया आपका आंसर. तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और कुछ नहीं है. इज दिस वन ये तो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. आई डोंट हैव टू, वो दोनों भी 10 9 एंड 10 दोनों भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0. -2 and 0, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0. कैसे ढूंढते हैं रैशनल नंबर? कितने भी चाहिए, पहले डिनोमिनेटर कर दो, पहले डिनोमिनेटर को सेम करो. सेम नहीं है तो, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर इंक्रीज द रेंज. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. तो दिस वुड बी -20/10 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0/10. 0 into 10 is 0/10. So there are so many numbers between these two, right? -20 and 0 के बीच में, like -19 -18/10 -1/10 and so many numbers are there in between, right? And all those you can write it directly also. I think I can go for it. -1 ही है, एक ही नंबर है, तो बहुत सारे नंबर्स इसके बीच में नहीं है. तो ये रहा एक तरीका कि आप लिख सकते हो -20/10 के बीच में -18/10 -17/10. थोड़ा सा निगेटिव नंबर आने के बाद -11/10 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ 0. तो यू कैन राइट एज मेनी एज यू वांट. ओके, सो निगेटिव नंबर आने के बाद थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा मिस्टेक मत करो, ठीक है.
तो नेगेटिव नंबर जब आते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आता कि इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है। 12th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। -5/6 एंड 5/8 के बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए। 10 फाइंड एनी 10 बहुत ज़्यादा हो गए, बट फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है इसलिए वो 10 दिखा रहा है। बट एनीवे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, तो इंटू 8 इंटू 6। So what do we have? -40 by 48 and 30 by 48. आई थिंक बहुत सारे नंबर्स इसके बीच में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो -40 के पहले वाला -39, 38 एंड ऑल अपॉन 48, तो ऑल दैट कैन बी योर रैशनल नंबर्स। सो बहुत सारे नंबर्स है, तो सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जो 15th क्वेश्चन है इसको हम लोग फिर से वर्कआउट करते हैं। जो 15th क्वेश्चन है नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो कोई भी नंबर लाइन हो, हमें अगर 7/4 करना है, देखो 7/4 अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। जो भी डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ये इक्वल होने चाहिए। और 4th पार्ट पे 1 लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अगेन आई रिपीट, जो भी डिनोमिनेटर है उतने पार्ट हम 0 to 1 के करेंगे। तो 0 लिखेंगे, 4 पार्ट्स इक्वल, मतलब मे बी सेंटीमीटर स्केल यूज करके भी आप लोग इक्वल प्लेस पे 4 पार्ट बना के वहाँ पे 1 लिखो, 4th पार्ट पे 1 लिखो। तो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, ऑफकोर्स दिस इज 4/4। अगेन द सेम डिवीजन इफ यू गो ऑन डूइंग इट, ये हो जाएगा 5/4, ये हो गया 6/4, ये हो गया मेरा 7/4, ये रहा मेरा 7/4 आंसर। ठीक है, तो और कुछ नंबर्स भी देखते हैं हम लोग, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे हम लोग। -5/6, तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही करना है हमें। नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 मार्क करो। 6 पार्ट्स बनाने हैं 1 के बीच में, लेकिन ये निगेटिव है तो -1 के बीच में। तो ये 1 2 3 4 5 एंड ये थोड़ा सा कम पड़ गया, एंड 6 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। जहाँ पे 6 हो गया वहाँ पे 1 कर दो। 1 नहीं, यहाँ पे क्या करना चाहिए, -1। तो ये हो जाएगा -1/6, ये हो गया -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 हो गया। ये रहा मेरा नंबर। ठीक है, इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यू कैन वर्क ऑन इट। नेक्स्ट वाला भी इजी है, रिप्रेजेंट एक ही नंबर पे करना है, ज़्यादा नहीं है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो अलग अलग नंबर लाइन यूज़ करो। डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 16 में 11, तो एक ही नंबर लाइन पे आप लोग कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा 11 नंबर बड़ा लग रहा है आपको, मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 0 हो गया। यहाँ पे 11 पार्ट्स कर दो ना, माइनस नेगेटिव की तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 को 1 कर दो। 1 मतलब -1 बिकॉज इट इज़ एट लेफ्ट साइड। तो ये ये रहा -2/11, 2 3 4 5, ये रहा -5/11, और ये रहा -9/11। हो गया, दैट्स इट। सो वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, हमने बहुत बार किया हुआ भी है, आपने किया हुआ है, आपको प्रैक्टिस है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये तो वही है, वही फिर से वही चीज़। ओके, लास्ट 20th वाला क्वेश्चन देखते। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल। तो आप आंसर कमेंट करोगे 20 क्वेश्चन का। चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20 टुडे इटसेल्फ। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यस वी हैव अ रैशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट अवेलेबल। ओके, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो फाइंड आउट करो, मुझे उसका आंसर बताओ। 21 करके आप आंसर लिखोगे। रैशनल नंबर दैट are equal to their reciprocal, we have seen this in the fill in the blanks, है ना। rational number, those are same as their reciprocals. The rational number that is equal to its negative, rational number that is equal to its negative, ये थोड़ा सा confusing है। तो चलो देखते हैं how many of you can give me answer of all the 3 answers, all the 3 questions correctly. तो waiting for your answer. Bye bye, see you in the next day. Tomorrow we are working on the इक्वेशन टॉपिक। ठीक है, रैशनल नंबर अभी हम ख़त्म कर देते हैं। ये बाकी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे इक्वेशन की तरफ। ओके, ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्कूल को वो टॉपिक ही नहीं है। तो हम लोग फटक से लीनियर इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इसके थोड़े वर्ड प्रॉब्लम हमें फोकस करना है एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क भी करना है। तो दैट्स इट, डोंट टेक टेंशन, हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो।